Welcome to قلوب القرآن في زاوية القرآن. أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہو گئی کمر کبڑی تیری پر دل صاف نہ ہوا. ہو گئی کمر کبڑی تیری پر دل صاف نہ ہوا. مارے گئے اندھیرے میں پر درجہ طلب نہ ملا. بھٹکتے رہے در بدر بھٹکتے رہے در بدر پر کمرہ قلب نہ ملا. ملا نہ رستہ قلب کا ملا نہ رستہ قلب کا پر نہ ہی قلب کا صفایا ملا. آج یہ 11واں پارہ میری اور آپ کی قلب کی تجدید کرے گا اور ہمیں ایک ایسا کردار دکھائے گا کہ انسان کا دل شک میں کیسے پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیسے اس دل کی طرف توجہ کرتے ہیں. پھر انسان کے دل میں گندگی کیسے آتی ہے. مہر شدہ دل کیسا ہوتا ہے اور اللہ دل کو اسٹمپ کیسے لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے پارے کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم 11واں پارہ پڑھیں گے. پارہ ہے یا تذرون. اللہ کرے ہم اس پارے کا فیض حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ ہمیں اس پارے کے اندر جو قلب نور رکھا ہے اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے. سب سے پہلے ہم آیات کے نمبر لکھیں گے اور ساتھ ہی آیات کی پوائنٹ لکھیں گے اور آیات کی ہیڈنگ دیں گے آیات نمبر، تاکہ ہم اچھے طریقے سے آیات کے نمبر کو مینشن کریں اور آپ اس آیت کو قرآن کے اندر ہائی لائٹ کریں گے. سورۃ توبہ آیت نمبر 95 ہے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذًا انقلبتم. کیا کہنے اس قرآن کے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ بندہ مومن تیرا دل پلٹتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آیات ریمائنڈر ہے. جیسے بھولا ہوا سبق بندہ بار بار یاد کرواتا ہے. ہر پارے میں تقریباً ہر سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہی یاد کروا رہی ہے کہ بندہ مومن جو تیرا دل ہے یہ پلٹنے والا ہے، یہ گھوم جاتا ہے. میں اگر اس آیت کو تسلی والی آیت کہوں تو بے جانا ہوگا. 10 پارے پڑھ کے کہیں مہر لگ رہی ہے، کہیں سختی آ رہی ہے، کہیں پہ جو ہے دل کے غلاف آ رہے ہیں، کہیں پہ پردے آ رہے ہیں. بندہ گھبرا گیا ہوگا، پریشان ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے بیزار ہو کے لیکچر ہی چھوڑ دیے ہوں اور کسی کے دل میں یہ آیا ہو کہ یہ تو ہمارے دل تو ایسے ہیں ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی اوروں کے ہوں گے، یہ تو کافروں کے ہوں گے. یہ آیت تسلی دے رہی ہے کہ تیرا دل جیسا بھی ہے نا، حوصلہ رکھ، یہ پلٹا کھائے گا. دل جیسا بھی ہے، یہ جو قلب تم اذن قلب تم، اللہ بار بار کہہ رہا ہے فین قلبو فتن قلبو کہ بندے دل پلٹنے والا ہے اور یہ ضرور پلٹے گا.
इसको आप तसल्ली याफ्ता आयत भी कह सकती हैं कि ये पलटने वाले दिल की बात हो रही है कि दिल जैसा भी है तू कोशिश कर, अल्लाह तेरे दिल को जरूर उलट पलट करेगा, फेर देगा। और शायद इसीलिए अल्लाह का नबी दुआ करता था, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि अल्लाह मेरे दिल को दीन पर साबित कदम रखे। तो पहली आयत से हमने क्या सीखा कि दिल पलटने वाला है, और जब पलटता है ये बार बार पलटता है और घूमता है, तब्दील होता है। और आप सब भी देखते होंगे, दिल को अगर आप अपने मूड के साथ कंपैरिजन करें तो ज्यादा अच्छा हो गया। क्या किसी इंसान का मूड एक जैसा रहता है? ना कोई सदा खुश रहता है, ना कोई सदा गमज़दा रहता है, ना सदा कोई खुशहाल रहता है, न सदा कोई सोता है, न हमेशा कोई जागता है, न हमेशा कोई खाता रहता है। हत्ता कि इंसान तो 3 दिन एक जैसा खाना खा ले तो उससे उकता जाता है, ये तो फिर भी दिल है। तो अल्लाह ने फितरतन ऐसा बनाया है कि जैसे इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, ऐसे ही बंदा मोमिन तेरा दिल भी घूमता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इसलिए तो तसल्ली रख, तू हौसला रख कि इंशाल्लाह अगर तू कोशिश करे, तू जागे तो ये दिल अभी भी पलट सकता है। लिहाजा हम इसका नाम रखेंगे अल्लाह ने तसल्ली दी है, ताकि आपको याद रह जाए। और ये हमारे अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, और इसको हम अखज़ शुदा पॉइंट भी कह सकते हैं, और इसको हम अमली नुक्ते भी कह सकते हैं कि ये वो है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। जो पॉइंट हमने अपने लिए निकाले हैं उसको आप कोई भी नाम दे सकती हैं। फर्जी तौर पे हम इसको अमली नुक्ते कह लेते हैं। इस आयत से समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए अल्लाह ने ये बताया है। आगे चलते हैं, सूरत तौबा आयत नंबर 110 ला यज़ालु बुन्यानुहुमुल्लज़ी बनौ रिबतन फी कुलूबिहिम। आयत 110 कहती है कि उनके दिलों में एक शक पड़ गया जो खटकता रहा। अब बात यह है कि अब यहाँ से एक नई बात शुरू हो रही है, और इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे शक वाला दिल। अब ये कैसा होता है और ये क्यों पड़ता है? एक तो वो शक है जो इंसान को इंसानों के बारे में पड़ता है, मामलात के बारे में होता है। हम समझते हैं शायद ये वही शक है जो किसी बाप को बेटी पे पड़ गया, वो हस्बैंड को वाइफ पे पड़ गया, और रिश्तेदारों का पड़ गया। ये वो नहीं है, ये रईब है, ऐसा शक जो जगह पकड़ गया। ये अगर इस शक को देखना है तो हमें माशरे में काफी कुछ मिल जाएगा, लेकिन फिर हम उसको ऐसे इम्प्लाइमेंट करते हैं कि ये शक को जाहिरी तौर पे तो ले लेते हैं, लेकिन अल्लाह यहाँ बात कर रहा है, बंदे तेरे दिल में शक आ गया। अब शक होता कैसे है? शक कैसा होता है इसको हम ऐसे जाहिर करेंगे। शक एक बीज है, एक कांटा है, एक जर्रा है, एक नुक्ता है, लेकिन इसके अंदर ताकत ये है, एनर्जी ये है कि छोटा ना बड़ा का है तो ये बीज जितना, और जिस दिल में ये बीज आ जाए
वो दिल फिर अल्लाह ताला को कैसा लगता है। ऐसे ही है कि अल्लाह ऐसे दिल को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला कहता है हर दिल में अल्लाह, हर पारी में अल्लाह बंदे के दिल को मांझ रहा है, साफ कर रहा है। कभी अल्लाह ताला कहते हैं नहीं इसमें शक आ गया, कभी कहता है निफाक आ गया, कभी कहता है नहीं बंदे तेरे किरदार में कमी है, तेरे अमाल में कमी है, तेरे जिक्र में कमी है। तो आज अल्लाह ताला बता रही है कि जो शक वाला दिल है अल्लाह उसको पसंद नहीं करते। बात हो रही थी कि ये कौन सा शक है। इस शक से मुराद जो है दुनियादारी के शक नहीं है, मुआशरे के शक व शुबहात नहीं है, बल्कि इससे मुराद एक और चीज है। वो इसको आप ऐसे समझे कि ये लाई है, एक तार है, एक जगह पे रब्बुल आलमीन है और एक तरफ इंसान है, और कुरान इसको हब्लुल्लाह कहता है। अब यहाँ पे इंसान का कल्ब है। अब इंसान चाहता है कि मैं कोई ऐसी लाइनमेंट मारूं, कोई ऐसा मुझे चीज मिल जाए कि मैं यहाँ से उठूं डायरेक्ट अल्लाह के पास पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला कहता है ये बंदे कि यहाँ से यहाँ आ, मैं तुझे यहाँ मिलूंगा, तुझे अर्शों तक सोचने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ जो है इसको आपने साफ करना होगा, यही रब का ठिकाना है। तो इसमें अगर शक आ गया तो आप रब को नहीं पा सकोगे। अब बंदे और अल्लाह के दरमियान शक है क्या? जहाँ पे आप वो सारे शक ज़हनों से निकाल दें जो माशरे में या बंदों को बंदों के बारे में होता है। सभी तफसीरों में ऐसे ही लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको फिलहाल नहीं लेगा। अल्लाह और बंदे के बारे में शक आ गया। अल्लाह ने कुरान दिया आपको, फिर उसको एक रस्सी कह दिया, कुरान को जिक्र कह दिया, कुरान को कलाम कह दिया, और फिर ये भी कहा कि बंदे तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद करूंगा। तो समझ आई कि अल्लाह याद से मिलता है। जब किसी को किसी की याद ना आए, वक्त गुजर गए, साल गुजर गए, ईदें गुजर गई, ना अच्छे वक्त याद आई ना बुरे वक्त के याद आई, वो खास तुझसे मिलेगा नहीं मिलेगा। अल्लाह का सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है। बंदे मैं तुझे अपनी याद से मिलूंगा, तू मुझे याद कर, तू चर्चा अर्श पे कर, मैं तेरा चर्चा अर्श पे करूंगा। लेकिन ये कब होगा कि जब शुरुआत तेरी करती है। इब्तदा अल्लाह इंसान खुद से चाह रहा है, अल्लाह खुद नहीं इब्तदा करता। अल्लाह ताला कहता है कि बंदे तू कर। पहले अल्लाह ताला ने कहा है तू याद करेगा तो मैं करूंगा। तो अल्लाह यहाँ से ये कहानी काफी इंसान से होनी है। हाँ तेरे अंदर वो टेलीफोन अल्लाह ने रख दिया है कि जब उसका कनेक्शन, उसके सिग्नल ठीक हो जाएंगे तो फिर तुझे अल्लाह की तुझे कॉल मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बात यह है कि इसमें शक आ गया। अब बंदा याद करता है, ये शक का जो बीज है ये काम क्या करेगा, जरा गौर से सुनिएगा। ये जो इस कल्ब के अंदर ये जो कोने में शक का बीज आया, अब ये कोने में थोड़ी रहेगा, ये मुतासर तेरे कल्ब की रूह को मुकम्मल तौर पर करेगा। अल्लाह के बंदो, अगर इंसान 10 अरसे तक नमाज़ी न पढ़े, इबादत न करे, कुरान न पढ़े, अंदर की रूह भूखी हो जाती है, फिर चीखती है, फिर इसको अपना वतन याद आता है और इसको परदेश में रोना आता है। ये जो तेरा मेरा जिस्म, ये जो बंद कमरे के अंदर अल्लाह ने रूह भेजी है, यसअलूनका अनिर रूह कुल अमरी रब्बी, ये तो अमर है अल्लाह का, ये जो रूह है ये तो अल्लाह का हुक्म है। जब अल्लाह के पास आसमानों पे थी, अल्लाह का जिक्र सुनती थी, आज इसको इसने भेज दिया, वो जिक्र नहीं मिल रहा, तो ये तो देश से परदेश हो गई है। ऐसे ही ये कल्ब का हाल है। इस कल्ब को तो अल्लाह का जिक्र चाहिए था,
नहीं मिला। बंदे, तूने अपने और अल्लाह के दरमियान शक डाल दिया। अब ये शक क्या है? वो कहते नहीं, जिक्र से कहाँ अल्लाह मिलता है। ये जो अल्लाह और इल्लल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो आप दीवानों की तरह पढ़ रहे हैं, इससे क्या मिलना है? कोई बताए भाई, अल्लाह का नबी ऐसे ज़रबे लगाता था, कोई बताए कि भाई कि जिक्र से अल्लाह कैसे मिलता है। इसके लिए आप नमाजें पढ़े, आप आलम बने, आप हाफिज बने तो अल्लाह मिलता है। ये समझ भी अल्लाह ने नहीं दी। अगर आप इसके बारे में आपके दिल में शक आ गया तो जिक्र से अल्लाह नहीं होता, जिक्र से रब की मुलाकात नहीं होती। यही वो शक है, ये जो शक वाली आयत बता रही है कि बंदे ऐसा शक ना डालना। अगर तूने मेरे कुरान का, जो मैंने खुद कहा है कि मैं जिक्र से करीब होता हूँ, जिक्र हबलुल्लाह रस्सी है, तू मुझे याद कर, तेरी याद अर्शों तक पहुंचेगी। और वो याद क्या है? तेरी नमाज रब की याद नहीं है, वो इबादत है। तेरा रोजा रब की याद नहीं है, वो तो फर्ज इबादत है। तेरा हज रब की याद नहीं है, वो इबादत है, वो हुक्म है, वो ऑर्डर है जो एक मुसलमान बनने के लिए तुझे करना पड़ेगा। इन इबादतों से तुझे जन्नत तो मिल सकती है, इन इबादतों से रब नहीं मिलेगा। अगर तू रब का मुतलाशी है तो तुझे जिक्र पर आना पड़ेगा। और फिर इस जिक्र से अगर इसके बारे में दिल में कुछ शक है तो वो शक निकाल दे, इसके बाद जिक्र शुरू कर। जब तेरी सांसों में जिक्र करने लगेगा तो तुझे रब मिल जाएगा। तो इससे मुराद वो शक है जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। आप ये इसको बंदों से रिलेट नहीं करना, इससे बचे कि ज्यादा से ज्यादा पहले इस कुरान को अल्लाह से तो रिलेट करने, फिर बंदों से भी कर लीजिएगा। हम सारी किताबों को जाहिर पे ले रही है, अंदर बातिन की फिक्र ही नहीं है जिसके साथ रब जुड़ा हुआ है। ये जाहिर बंदों से जुड़ा हुआ है, उसकी तरफ तवज्जो है, ध्यान है, दिन रात गुजर रही है। अंदर मेरा रब से जुड़ा हुआ है, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है। आगे हमारे पास सूरत तौबा की आयत नंबर 117 है। अल्लाह ताला कहते हैं, मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फ़रीक़िन मिन्हुम। यहाँ पे एक नबी का वाक़या जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला कहती है कि मैंने फिर उनके हाल पर तवज्जो फरमाई, उनके दिल पर तवज्जो फरमाई। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह करे इस रमजान में, इस कोर्स के जरिए, इस दौरे के जरिए, अल्लाह करे अल्लाह हमारे दिलों पे तवज्जो फरमा दे। तो बात दिलों की है और इसको हम कहेंगे, नाम रखेंगे तवज्जो तलब दिल। ऐसा दिल जो अल्लाह की तवज्जो का मोहताज है। और ये दिल बहुत ज्यादा है, ये हमारे सबके ऊपर फिट आ रहा है कि हर बंदे का दिल अल्लाह की तवज्जो के मरकूज है, इंतजार में है। और हर बंदा चाहता है कि अल्लाह ताला, जैसे बंदा पेपर दे तो बंदे की तवज्जो मुमतकिन की तरफ होती है कि वो मेरा रिजल्ट जल्दी दे। ये तवज्जो तलबी वो दिल है कि जिसके बाद इंसान की जब थोड़ा सा वो शुरू होता है, ये शक वाला बीज निकल जाता है, जिक्र शुरू करता है और फिर बंदा कहता है कि मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ पर मुझे अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तब्दीली नहीं आ रही। बंदा मुंतजिर है कि अल्लाह मेरी तरफ तवज्जो करे। तो अब क्या होगा? एक बात याद रखिएगा, अल्लाह हर जिक्र करने वाले की तरफ तवज्जो नहीं करता कि जो भी उठ के करने लग जाए अल्लाह उसकी तरफ देखेगा। उसमें भी सिलेक्शन होती है कि अल्लाह किसकी तरफ देखेगा और किसकी तरफ नहीं देखेगा। अगर ये काम इतना आसान होता तो हर दिल कल्बी नूर न बन जाता, जबकि ऐसा नहीं है। इसके लिए बात यही है कि अपने रब को मनाना सीख लो, जिक्र भी करो और उस जिक्र को अपने ऊपर तारी भी करो। उस जिक्र के बाद खुद अपने ऊपर एक टेंशन ही सवार करो कि मैं जिक्र कर रहा हूँ। ख्यालात नहीं बदले, सोच नहीं बदली, अकल नहीं बदली,
फिक्र में बदले गौर में बदला फायदा। कुरान पढ़ रहा हूँ इरफान नहीं आ रहा, इल्म पढ़ रहा हूँ हिदायत नहीं आ रही, दुनिया फिर रहा हूँ मंजिल नहीं मिल रही, क्या फायदा है। तो फिर यहाँ आपने सोचना है, बार बार सोचोगे, दुआएं करोगे, वो जिक्र आपके दिल पे तारी होगा, हर टाइम ध्यान अल्लाह की तरफ चला जाएगा। फिर अल्लाह जब आपकी तवज्जो ज्यादा जाएगी तो अल्लाह आपकी तरफ ध्यान करेगा, और यही है वो तवज्जो वाला दिल। इसको आप तजल्ली वाला भी दिल कह सकती हैं, और इसको आखिर में हम एक और नाम भी दे सकते हैं, तजल्ली वाला दिल। ऐसा दिल जिस पे अल्लाह की नजर पड़ी, ऐसा दिल जिस पे अल्लाह का करम हुआ, ऐसा दिल जिस पे अल्लाह ने नजर की। तजल्ली याफ्ता दिल। अल्लाह ने देखा बंदा बार 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 उसकी तरफ मुतवज्जो कर रहा है। ये वो काम है जो हमने आज से शुरू कर देना है, और हमें ये पता चले, हमें अपने रब की खोज लगानी है। छोड़ दे सारी फिक्रें, बस उस रब के पीछे पड़ जाओ कि मेरा रब किधर है, रब कैसा है, मुझे यहाँ भेजा। जी अगर इस दुनिया में आकर मैंने रब को न पाया तो बस फिर इबादतें करके जन्नत में तो चले जाओगे, पर रब नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं वअम्मल्लज़ीन फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादतहुम, उनके दिलों में बीमारी है और अल्लाह ने उसको बढ़ा दिया। कितनी दफा आ गया है बीमारी का जिक्र। यकीन जानिए अब हैरत होती है कि अल्लाह इतनी रेपिटेशन कर रहा है। हम पारे पे पारा पढ़ते जा रहे, कुरान 10 कुरान 5 कुरान 15 कुरान, और अपने मुर्दों को बख्श रहे हैं 1000 कुरान, और हम लोगों के अंदर रमजान में कुरान बांट रहे हैं और घरों में कुरान खानी करवा रहे हैं। इस कुरान में अगर आपका कल्ब सही ना किया तो ये कौन सा कुरान है, और तो कौन सा मोमिन है जो कुरान उठा के लेके फिरता है अगर इस कुरान में तेरे कल्ब को नहीं झिझोड़ा। कितनी दफा अल्लाह जिक्र कर चुका है वअम्मल्लज़ीन फी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, बंदे बीमार थे। अब यहाँ पे यकीन जानिए मैं ये पॉइंट बार बार लिख रही हूँ, हर पारे का, हर पारे में अल्लाह ताला बार बार कह रही है कि बंदे जरा बच जा। जैसे कोरोना वायरस थी, पाकिस्तान में जब भी किसी को फोन करते थे तो सबसे पहले हिदायत शुरू हो जाती, ये करो, मास्क का इस्तेमाल करो, रश वाली जगहों पर ना जाओ, एक दूसरे के करीब ना जाओ। लग रहा है ये मामला उससे भी सीरियस है। अल्लाह बार बार हिदायतें कर रहा है कि बंदे देखना कहीं दिल बीमार ना हो जाए, इससे बचना, इससे बचना, इससे बचना। ये है वो परहेज जो अल्लाह बता रहा है कि बंदे देखना, तेरे दिल को अगर बीमारी लग गई तो फिर मैं उस दिल में नहीं रहूंगा, मेरा तेरा रास्ता जुदा हो जाएगा और तेरा मेरा कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो इस दिल को, जिसको अल्लाह ने बीमार दिल कहा, तो बात ये है कि अल्लाह ने पहले शक का इजहार किया कि बंदे शक वाले दिल में भी नहीं रहूंगा, तवज्जो तुझे जरूरत है। फिर अल्लाह ने बीमार दिल की बात कर दी कि यहाँ पे हम, क्योंकि जिक्र ज्यादा हो चुका है, इतना ही करेंगे। बीमार दिल रब को नहीं चाहिए। जैसे हम कह देते हैं फला चीज मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह का अंदाज ये है कि ए बंदे, बीमारी वाला दिल मुझे नहीं चाहिए। क्या कहूँ इस दुनिया को, बीमार बंदे से दुनिया रिश्ते नहीं करती, रब बीमार दिल से रिश्ते कर लेगा? नहीं करेगा। जैसे तुम रिश्तों की सिलेक्शन करते हो कि जिंदगी निभानी है, रब दिलों की सिलेक्शन करता है कि बंदे ये तेरा मेरा ताल्लुक है, निभेगा इसी बेस पे
कि जब तेरे कल्ब की सफाई होगी। आगे सूरत तौबा आयत नंबर अल्लाह ताला 127 में फरमाते हैं, सर्रफल्लाहु क़ुलूबहु वबियन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। अल्लाह दिलों को फेरने वाला है, लेकिन उसका दिल निखेरेगा जो ना समझ है। अगर हम दुनिया में देखते हैं कि ये शाना नहीं है, अक्लमंद नहीं है, होशियार नहीं है, चालाक नहीं है, हम इसको ना समझ कह देते हैं। खुदा के लिए इस कुरान को इस कोर्स में जाहिर ना लीजिएगा। जाहिरी तौर पे लेना है तो बहुत अच्छी अच्छी तफसीरें पढ़ी हैं। ये कोर्स आपके बातन के लिए है, ये वो डिप्लोमा है जो आपके बातन की सफाई करेगा। इसको जब भी आपने लेना है अपने अंदर लेना है। तो अब ये है कि ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फेरने वाला दिल या फेरा हुआ दिल, सर्रफा घूमने वाला। अब फेरा हुआ दिल अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि बंदा मोमिन, अब जो अल्लाह ताला ने यहाँ शुरू में भी पलटने वाला कहा, अब अगर कोई बंदा कहे कि पलटने और फेरने में फर्क क्या है। पलटता है कैसे? जैसे मेरे पास कोई किताब है, मैं उसका सफा पलटता हूँ। बंदे का दिल भी ऐसे चेंज होता है, सफाई पलट जाता है, कुछ से कुछ बन जाता है और फिर इतना चेंज आता है कि दुनिया भी बर्दाश्त नहीं करती। ये है घूमने वाला दिन। अल्लाह घुमा देता है। घूमना और है, लेकिन तरीका कार वही है। घूमना ऐसे ही है कि जैसे एक चीज जहां से उठा के वहां रख दी। बड़ी जदीद दौर की गेमें चल रही हैं कि आप चीजें घूम घूम कर आएंगी आपके सामने और आप उसमें से किसी भी बॉटम को सिलेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। बात ये कि फेरे हुए दिल की बात हो रही है। तो अल्लाह ताला कहती है कि सर्रफल्लाहु क़ुलूबहum। देखिए अल्लाह अपनी तरफ कह रहा है कि मैंने इसका दिल फेर दिया। ये नहीं कहा कि बंदे ने फेरा, वो तो अल्लाह ने उसको रिमोट ही नहीं दिया। बंदे के दिल में कहाँ कंट्रोल, मजाल के बंदा एक बंदे की मोहब्बत दूसरे में डाल दे, हो ही नहीं सकता। बॉडी को एक कमरा सिलेक्ट करे, इसके अंदर वो जो लतीफा कल्ब है ना, वो तेरा मेरे हाथ में रिमोट नहीं है। ये फेरा हुआ दिल अल्लाह ताला कहती है मैंने फेर दिया। अल्लाह ताला क्यों फेरा? बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। इसी आयत का मैसेज है कि वो समझदार नहीं थे, वो समझने वाले नहीं थे। इसको हम देख के जरा आगे रिलेट करते हैं कि क्यों फेरा, क्योंकि वो समझते नहीं थे, ना समझ थे। अब अगर आप जाहिरी तौर पे तो लेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि जिस हम दुनिया में कहते हैं अपना बंदा समझदार नहीं है, अक्लमंदी से माल खर्च नहीं करता। अल्लाह ताला कहती है कि मैंने इसलिए दिल फेरा कि वो समझदार नहीं। अब अल्लाह की समझ की बात कर रहा है। अल्लाह कौन सा कह रहा है कि वो बंदा मेरी बात नहीं सुनता था? तो बात ये है कि ये वही बात है। अल्लाह कह रहा है मैं तुझे मिलूंगा जिक्र से, और बंदा उसको ढूंढ रहा है नमाजों में, रोजों में। अल्लाह तो नहीं मिलेगा, सवाब मिलेगा, नेकियां मिलेंगी, हर जगह होगा। तो बंदे अल्लाह की सुन बात। अल्लाह कह रहे हैं कि वो समझते ही नहीं है। तो इस कोर्स में कह रही है कि अल्लाह जिक्र से मिलेगा, लेकिन वो कहीं और ढूंढ रही है। तो ऐसे लोगों के दिल फिर अल्लाह उधर ही फेर देता है जिधर वो फिरे होते हैं। अल्लाह उनको उधर ही लगाए रखता है जिधर वो लगे होते हैं। आगे एक नई सूरत शुरू हो गई है। सूरत है यूनुस। प्यारा पैगंबर, बड़ा प्यारा नबी, मछली वाले नबी, उसी के नाम से सूरत बन गई। आयत नंबर है 74। वकज़ालिका नत्बअु अला क़ुलूबिल मुअतदीन।
अल्लाह कहते हैं मोहर लगा देता हूँ जो ज्यादती करते हैं। सदके जाऊं उस रब के बार बार मोहरों का जिक्र कर रहा है, लेकिन बंदे हैं कि पलटने का नाम ही नहीं लेते। तो मोहर शुदा दिन, काश अल्लाह हमको देख सकते कि वो मोहर कैसी है, जो इतनी पक्की है, आसानी से नहीं मिटते। लेकिन अगर बंदा मिटाने पे आ जाए तो रब के ताल्लुक से, रब की सिफारिश से वो मिट जाएगी। अल्लाह ने खुद ही बता दिया कि इन कलूब पर मुहर लगाता हूँ जो ज्यादती करते हैं। हम समझते हैं जी किसी ने किसी का माल लूट लिया, वो चोर बन गया और वो ज्यादती हो गई। हम समझते हैं कि किसी ने किसी के साथ ज्यादती कर ली तो वो ज्यादती है। इसको रखें अल्लाह के ऊपर। आपने अल्लाह के साथ कौन सी ज्यादती की है, और फिर अल्लाह ने उसके बदले आपकी कल्ब पर मुहर लगाई है। मोतदीन कहते हैं हद से गुजर जाने वाला बंदा। तो अल्लाह और उसका मामला था बंदे का। अल्लाह दिल की तरफ देख रहा है। अल्लाह तो जाहिर का मुकल्लफ ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बंदा कहाँ जा रहा है, किसके पास बैठा है, कौन से फिरके में गया, कौन सी मस्जिद में गया, उसमें गया ज्यादा नहीं गया, इसमें गया कम, ये बात नहीं है ना। अल्लाह इन चीजों को देखता है। रब कहता है नतबउल्लाह वला कुलूबिही, कि मैं तो तेरे दिल पे मोहर लगाई थी कि तू ज्यादती। अब जाहिर में तो यही है कि वो ज्यादतियां कर रहा था, बंदों के साथ करता होगा, लेकिन नहीं। तेरी अल्लाह से भी कॉल नहीं मिल रही तो दुआएं करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, वजीफे के, तावीज़ के, जादू तूने लोगों ने किए और तू उसके लिए दर बदर फिरता रहा, तेरा घर तबाह हो गया, लेकिन तू जादू को कंट्रोल न कर सका। तो बात ये है कि जो ज्यादती है, जो हद से बढ़ना है, वो यही है कि अल्लाह तुझे जगाता रहा, तू जागा ही ना, अल्लाह बुलाता रहा, तू बोला ही ना। अब 5 नमाजें तो अदा कर रही हो, बात तो तब है कि जब रब खुली कचहरी में तहज्जुद के टाइम आकर कहता है मेरे बंदे कहाँ हो, आईना अब्दी, मेरे बंदे कहाँ हो। उस टाइम उठे ना बंदा और कहे लब्बैक या अल्लाह। ये तो कोई बात ना हुई। जो जाहिरी अजान हो रही है उस पे तू जाएगा तो वो फर्ज है, वो ऑर्डर है, वरना इसके बगैर तो मुस्लिम नहीं रहेगा। और जो अल्लाह खुफिया कॉल दे रहा है, जो तुझे चुपके चुपके उठा रहा है, तो उठता ही नहीं है, तो फिर रब तो नहीं ले रहा। यही वो ज्यादती है कि अल्लाह बुला रहा है और तू सिर्फ फराइज अदा करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत को पाने की तमन्ना नहीं है। सूरत यूनुस है और ये लास्ट आयत है आज के सिपारे की। बहुत खूबसूरत आयत है। अल्लाह ताला ने 88 आयत के अंदर मैसेज दिया है, वशदुद अला कुलूबिहिम फहुम ला युमिनून, वशदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनून। दिल सख्त कर दिए, वो ईमान वाले ना रहे। हैरान किया रब पे। हम कहते हैं नमाज नहीं पढ़ा ईमान खत्म, कलमा नहीं पढ़ा काफिर बन गया। हम तो ये सिलसिला और ही नजरों से कर रही है। अल्लाह कुरान में और स्टाइल कह रहा है कि मैंने दिल सख्त कर दिए और वो ईमान वाले ही ना रहे। बंदों कुछ होश करो, कहीं ऐसा ना हो कि जाहिरी प्याले में हमारी इबादतों के तो ढेर लगे हो और जब दिल खुले तो दिलों का हाल ये हो कि वो शक वाला हो, वो गुस्से वाला हो, वो सख्त हो, वो बीमार हो और सिर्फ तेरा जिस्म हरकत करता था, कभी नमाज, कभी रोजा, कभी ज़कात, कभी हज, और वो जाहिरी जिस्म की तरफ अल्लाह देखता ही नहीं था। अल्लाह इसकी तरफ देखता रहा, तू कुछ और करता रहा। तो फिर यही वो दूरी है जो अल्लाह मिटा कर बंदे को करीब करना चाहता है। तो इसका पॉइंट यही बनेगा कि ये बीमार सख्त दिल है, बस दूध कि ये सख्ती आ गई। अब ये सख्त दिल यहाँ पे आके ऐसा हो गया है कि कई लोगों को देखा है कि जिक्र वही नहीं कबूल करते जो सख्त दिल होते हैं।
रब से प्यार उनको नहीं होता जो सख्त दिल होती हैं। और अल्लाह ताला ने कुछ और मामला रखा, बंदा बिल्कुल उसकी तरफ उलट चल पड़ा। ये आयत पूरी कहानी को प्रेजेंट कर रही है, जो आखिरी स्टेम शुदा आयत है कि जब मुहर लगाई अल्लाह ने, ऐसे ही साथ रख दिए फाइल उठा के। जैसे हम किसी दफ्तर में जाए, मुहर लगने के बाद तो कह दिया जाए कि अब इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, ये टस्टअप हो गया, ये ऊपर से आ गया है इसका ऑर्डर, अब हमारे बस की बात नहीं है। तो खुदा के लिए इस नक्शे को समझे, रब ने बात की है पलटने से, और फिर अल्लाह ने शक की वजाहत की, फिर तवज्जो तलब दिल, फिर अल्लाह ने बीमार दिल को, और फिर बसर अल्लाह ने फेरे हुए दिल की बात की, और फिर मोहर शुदा डर लगता है। अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मोहर शुदा दिल से बचा ले। या अल्लाह हमारे दिलों के हाल पे रहम करे। जैसे हम जाहिर में कहते अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर, हमारे बच्चों पे रहम कर, हमारे घर पे रहम कर, खुदा के लिए अपनी दुआओं में ये शामिल कर ले, अल्लाह हमारे दिलों पे रहम कर। अल्लाह कहीं ऐसा ना हो कि मोहरें लग गई हो, कहीं ऐसा ना हो कि सख्ती आ गई हो। अल्लाह ताला ये तो इतना मामला गहरा है कि हमें हमारा दिल दिखाई नहीं देता। बच्चे दिखाई देते हैं, घर दिखाई देता है, पढ़ाई दिखाई देती है, जॉब दिखाई देती है, क्या कहूँ उस रब के कि दिल दिखाई नहीं देता। और यकीन करिए ऐसा लगता है कि हम इतने बेखबर थे, जैसे किसी चीज को वो 10, 15, 20 साल का अरसा गुजर गया, देखी ही ना हो, और जब संभाली तो उसका बुरा हाल हो चुका है। तो खुदा के लिए अपने दिलों को जरूर चेक करें और पूरी की पूरी तवज्जो अपने दिलों की तरफ कर ले। यहाँ तक आज का एपिसोड मुकम्मल हुआ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इसका फैज़ सबके दिलों तक पहुँचाए। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में ऐसा पढ़ूं कि मुझको रब मिल जाए, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जो गार हिरा की रोशनी है वो दिल पे मेरे तारी कर। कुरान में तेरा पढ़ती रहूं ये जिक्र लबों पे जारी कर। जो गार हिरा की रोशनी है वो दिल पे मेरे तारी कर। कुरान में तेरा पढ़ती रहूं ये जिक्र लबों पे जारी कर। पूरी दुनिया में गूंजे ये कुरान तेरा मौला, इतनी सी है दिल की आरज़ू।